Yeah, good morning, everyone. So, we were discussing the idea of straight lines. Let's continue further. In today's class, I'm going to introduce another very important equation of a line, and that is in the intercept form. So, what exactly we mean by the intercept? Consider this case. There is a line. We need to find this equation. This line is making the length A cutting the intercept actually as A unit on x-axis, and this length OB is clearly B units. So this length is B units. So we say that the x-intercept of this line is A units and the y-intercept is B units. And in this case, the equation of this line is given by this direct formula: x by a plus y by b is equal to 1. So please make a note of this, and this is a very important form as a intercept form of a line. So whenever in a numericals you find the term as intercept, तो 99% for sure आप इक्वेशन ऑफ द लाइन ये assume करने वाले हैं. इसी के बाद क्वेश्चन आगे फर्दर स्टार्ट होता है. Okay, so consider a few questions based on this, starting with a very straightforward question. Find the equation of a line which makes the intercept 2 and -3 on x-axis and y-axis respectively. तो आप चेक करिए, x एक्सिस का इंटरसेप्ट तो a हो जाता है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट इज b. तो x by a plus y by b is 1. 3x minus 2y is 6. यस, बी की जगह -3 रख दिया. बट रिमेंबर, इसके बाद आपको बिल्कुल ये एलसीएम लेना है और रीअरेंज करना है. तो एलसीएम लिया, रीअरेंज कर दिया. 3x minus 2y minus 6 is 0, which is your required equation of this line. Check this out. Find the intercepts cut off by this line on the coordinate axis. In simple word, आपसे x intercept की लेंथ पूछी है और x intercept का मतलब a कितना है, और आपसे पूछा है y intercept जो हम b कहने वाले हैं. So the basic idea is, let us express this equation in the form of intercept line. कैसे? Check this out. इसे -16 लिख दिया इक्वल टू -16. याद रखिए, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में RHS इज 1 ओनली, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए. तो 1 बनाने के लिए आप इक्वेशन को -16 से डिवाइड कर दीजिए. तो 2x ओवर -16 माइनस y ओवर -16 इज 1. -16 by -16 और x by -8, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा y by 16, and this is equal to 1. Once I have expressed my equation of the line in the intercept form, the answer is, what is a? -8. What is b? 16. And they are nothing but your intercepts on the x and y axis respectively.
Check out this question. Find the equation of a line which passes through the point 3, 4 and sum of whose intercepts on the axis is 14. जैसे ही मैंने ये टर्म देखी, इंटरसेप्ट्स की बात करी गई है, तो लेट दी रिक्वायर्ड लाइन बी, मैं क्या लेने वाला हूं, x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हम स्टार्टिंग से फिर क्वेश्चन देखते हैं. पहली कंडीशन क्या कही है, इट पासिस थ्रू 3, 4 मीन्स 3, 4 लाइज ऑन इट. तो x की जगह 3 रख दिया, y की जगह 4 एंड ये इक्वेशन आ गई. से फर्स्ट इक्वेशन. अब अनदर कंडीशन क्या थी, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज 14. ऑल्सो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स का मतलब ए एंड बी थे इंटरसेप्ट्स, तो ए प्लस बी 14 गिवन है. दैट इज बी को लिख लिया 14 माइनस ए. तो बेसिकली आई हैव गॉट टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो 11th का कंसेप्ट तो हो चुका जो आपको यूज करना था. नाउ इट इज योर algebraic calculation. Let's see how I'm going to solve it. So solving 1 and 2, आप b की वैल्यू रिप्लेस कर दो. b की जगह लिख दिया 14 माइनस a. टेक द LCM. इट्स अ नॉर्मल LCM, नॉर्मल कैलकुलेशन, और ये दे देगा 42 प्लस a इज इक्वल टू a इंटू 14 माइनस a. ओपन द ब्रैकेट एंड रीअरेंज. तो 14a माइनस a स्क्वायर, सो a स्क्वायर इधर आ गया, ये माइनस 13a प्लस 42 इज 0. आई गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a. अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग देखते ही पता चल रहा है, -6 एंड -7. Combine first two and last two. Giving the value of a as 6 or 7. Check this out. Case 1. When a is 6, b कितना था, 14 माइनस a, और b आ गया 8 के इक्वल. a और b मुझे पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x बाय a. ये रही मेरी इक्वेशन. तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1. LCM and simplify. Similarly, you are going to consider case 2 when a is 7. आप चेक कर लीजिए, b भी 7 आ जाएगा, और इक्वेशन हो गई x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 एंड सिंप्लीफाई. तो इस तरह से यू विल गेट two different possible answers.
Please make a note of it. And mark your attendance. Now, this is a very similar and simple question for your homework. अब आपको इंटरसेप्ट्स की बात करी गई है और कह रहे हैं उनका सम एंड प्रोडक्ट ये गिवन है, तो आप इक्वेशन ऑफ द लाइन तो ऑब्वियसली आइडिया लग जाएगा, ये ले लिया। और आपको गिवन क्या है, a प्लस बी 1, ए बी -6। तो यू हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 10th क्लास का कोई भी मेथड यूज करिए एंड सिंप्लीफाई, गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इजियर वन वे, बी कितना आ गया -6/a, बी की वैल्यू ऊपर रिप्लेस कर देंगे, टेक द एलसीएम, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए की दो वैल्यूज आएंगी, कॉरस्पॉन्डिंगली बी की दो वैल्यू आ जाएंगी, एंड दिस क्वेश्चन विल हैव 4 डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स। 4 अलग अलग आंसर आने वाले हैं, यू कैन चेक दैट आउट। Yes, find the equation of a line drawn perpendicular to this line। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा ना डायग्राम एक्यूरेट सोचने की कोशिश करते हैं। सो इंटरसेप्ट का मतलब ही ये था कि ये लाइन किस पॉइंट से क्रॉस कर रही है, 4 0 एंड 0,6। तो ये रहा कहीं पर 4 0 और ये रहा 0,6। तो अगर ये लाइन आपके पास ऐसे जा रही है, अब एक बार जरा क्वेश्चन फिर पढ़ के देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस ए बी के परपेंडिकुलर हो और कहां से, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस, इट रेफर टू दिस लाइन। So English language, that comprehension is again important here। तो इस पॉइंट से जो लाइन अब इसके परपेंडिकुलर गई है, ये लाइन गई परपेंडिकुलर, आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो मैं इसको अगर C कहीं पे ही पॉइंट ले लेता हूं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड, इक्वेशन ऑफ BC। We will find slope of AB, then Yes, BC, and then point slope of. परफेक्ट। तो स्लोप ऑफ ए बी सबसे पहले सोचते हैं। स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट फॉर्म, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं तो ये इक्वेशन थी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। किसी भी वे में आप सोच सकते हैं, ऑब्वियसली सेम आएगा स्लोप आपका। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो नाउ AB is perpendicular to BC। इसका मतलब स्लोप ऑफ देयर प्रोडक्ट इज -1। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि स्लोप ऑफ, चलिए AB इंटू
slope of BC is -1, -3/2 इंटू आप स्लोप ऑफ BC को m कह दीजिए। तो इससे हमारे पास स्लोप ऑफ BC कितना आ गया, 2/3। फाइनली अगर अब आप फिर ध्यान से नोटिस करें, हमें BC लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का स्लोप मिल गया और इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है ये भी तो मुझे पता है ऑलरेडी। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द पॉइंट स्लोप फॉर्म। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BC हो गया y minus y1 is m into x minus x1। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस मान लो 4 क्लास पहले करे, 5 क्लास पहले किए हैं, दे ऑल विल बी गेट यूज्ड ओवर हियर। Consider this another very important form. Equation of the line in the normal form। अब आप चेक करिए नॉर्मल फॉर्म का, देखिए मतलब क्या होने वाला है। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपके पास कोई भी लाइन जा रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये लाइन जा रही है। इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया। आपको वो डिस्टेंस जो है वो p यूनिट्स गिवन है, p स्मॉल p नोटेशन फिक्स है। और इस लाइन ने ON ने x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल जो बनाया वो अल्फा है। आई जनरली प्रेफर टू टेक थीटा, NCERT में ओमेगा यूज करा गया है, सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो कैसा भी एंगल अगर मान लो अल्फा अगर हमने ले लिया, देन द इक्वेशन ऑफ दिस येलो लाइन, ये जो ड्रॉ करी गई है, ये इस लाइन की इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज p। ये तो मैंने अभी केस लिया एक्यूट एंगल का फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इवन इट हार्डली मैटर्स अगर मान लीजिए लाइन सेकंड क्वाड्रेंट से ऐसे भी जा रही होती। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये, यहाँ ओरिजिन से p यूनिट, और इस लाइन ने x एक्सिस के साथ अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, परपेंडिकुलर ने कितना एंगल बनाया, ये पूरा एंगल बना है, विच इज नाउ अल्फा। स्टिल द फॉर्मूला इज सेम। इफ इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल पे से नोटिस करो आप, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन गई और एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हुआ। ये कंप्लीट एंगल जो है वो आपके पास फिर से अल्फा है, या मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं। सो इट हार्डली मैटर्स लाइन मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट से जा रही थी। इन ईच एंड एवरी केस द फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। लर्न दिस फॉर्मूला। So let's begin with a simple question to start with. अब आर्टिकल को आपको रिलेट करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, और यहां से MCQs बहुत इजीली बनते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from origin is 5।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को हमने P कहा था. एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर इज 30 डिग्री. इसका मतलब अल्फा आपको गिवन है 30 डिग्री. अगर आपने रिलेट कर लिया इस चीज को तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज p. दैट इज x cos अल्फा की जगह 30 डिग्री रख दिया और p की जगह 5 रख दिया. cos 30 डिग्री √3/2, sin 30 डिग्री 1/2. स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. टेक द LCM and rearrange your required answer. तो आगे की कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिकली इजीली हो जाएंगी प्रोवाइडेड मुझे पहला स्टेप याद हो. This is the question for all of you. Check this out. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफिकेशन के बाद बिल्कुल वही सारी कंडीशंस हैं. तो P आपको गिवन है √8 डिस्टेंस एज यूनिट और अल्फा डायरेक्ट गिवन है 135. इक्वेशन विल बी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P. और अब cos 135 डिग्री sin 135 डिग्रीज ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे निकालना है. x minus y plus y substitute. ओके, तो आप चेक करिए. यस, ये लिख दिया. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और sin 135 सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव ही होता है. Once I have the following values with me, replace them and minus x plus y is equal to √16, which is 4. Your required answer. Any doubt to anyone? Check out this question. Reduce this equation in the normal form. ये बता ही दिया है. Hence find alpha and P. The most important step is this. Everyone focused. ये RHS मिलाकर -2 हो गया. बट याद रखिए RHS is a distance. It cannot be negative.
पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये नहीं किया सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद रखिए। आरएचएस को पहले पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद हम थीटा और वो सब को यूज करने वाले हैं। तो अब आप इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आ चुकी है, कंपेयर करेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। वी गेट cos अल्फा कितना आ गया, -3। सॉरी, ये एक स्टेप रह गया यहाँ पर मिसिंग। अभी कंपैरिजन करने से पहले, बिफोर यू कंपेयर, there is another step which is involved. Divide both sides by root of x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। I'll explain why. तो पहले आप ये चीज सोचिए कितना आ रहा है ये। √2 2 दिस इज √4 और विच इज 2। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो -√3/2 इंटू एक्स -1/2 इंटू वाई। 2 से डिवाइड करा है तो आरएचएस तो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये मिल चुका है फॉर्म, ये वाली नॉर्मल फॉर्म। और अब आप जब कंपेयर करेंगे किस फॉर्म के साथ, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज p, वी गेट cos अल्फा -√3/2 sin अल्फा y का कोफिशिएंट -½ और p तो डायरेक्ट आ चुका है 1 के इक्वल, ये रहा p। सो अब रह गया अल्फा निकालना, और वो अब आप इन दोनों से लॉजिकली सोचने वाले हैं। अगेन द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड एंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ। तो कॉमन अगर आप ध्यान से देखें तो हम आ गए हैं इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पर कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। तो एक ये आपने सबसे पहले सोच लिया कि एंगल अल्फा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब क्या करने वाले हैं, अब आप किसी भी एक रिलेशन को कंसीडर कर लो, या कॉस को या साइन को, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि मुझे पता चल चुका है अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में सोचना है। यहां अगर अल्फा है, यहां होता है पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। ये हमने डे 2 में डिस्कस किया था जब ट्रिग्नोमेट्री की बात की थी। तो ये आपको क्लियरली याद होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्चुअल में पाई प्लस अल्फा है। कैसे, √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस की टर्म में, cos 30 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई प्लस थीटा हो जाता है, तो ये आ गया cos 7π/6, और फाइनली अल्फा आ गया 7π/6, योर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल एमसीक्यू है, इक्वेशन दे दिया, व्हाट इज अल्फा, तो 4 ऑप्शन, पर उस ऑप्शंस के लिए आपको ऑब्वियसली ये कंप्लीट सोचना पड़ेगा।
Please make a note of it. अब अल्फा निकालने में आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल स्ट्रगल, प्रोवाइडेड आपको वो कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने बताया है रिपीटेडली 11th हो और आगे भी या 12th हो। ये तो बेसिक फंडामेंटल हैं, इसके बिना नो सर्वाइवल, स्टार्ट ही नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेक इट श्योर कि दिस इज क्लियर टू यू, लर्न टू यू और क्लियर है। Any doubt to anyone?